Good afternoon, friends. Welcome to Ecom classes. As you will know that through these video series, we are preparing for JRF Commerce 2020, and by these videos, I am covering Unit 1, that is Business Environment and International Business. I am Manpreet Kaur, research scholar research scholar at GJU SNT Hisar. I've done MBA, MCom, and qualified NET Commerce twice. I've done JRF in Commerce as well as NET Management. Also, I have qualified STET and CTET exams. So through these video series, we have covered almost two topics, and this is the third topic what we are going to cover, that is monetary policy, which is a very important topic from the point of view of exam. So let's start. Monetary policy. Monetary policy is a policy which helps to control the inflation and deflation into the market. It is being formulated and executed by the Reserve Bank of India. This policy regulates the supply of money into the market. When we use the term money, here money term includes currency as well as the credit creation by banks. In NET exam, already this question has been asked that what does money include? It includes not only the currency but also the credit creation by banks. Keep this thing in your mind that money is equal to currency plus credit creation by banks. The main objective of this policy is to stabilize the prices and promoting growth. The main features of monetary policy. Before 1951, monetary policy was a policy which was of a passive state, but now it is working as an active policy. This policy controls the money supply and it is a bi-monthly policy. Okay. Investment plus saving orientation is being adopted in this policy, and in seasonal variations, how this policy works, like in busy seasons, main focus is made on expansion. That means more money is put into the market so that expansion of money could be made in the busy seasons, and ताकि बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में लाया जा सके. But in the slack seasons, main focus is on the contraction part. This is a flexible policy. In case more funds are required, तो monetary policy को liberal बनाया जाता है, but in case less funds are required, तो tight बनाया जाता है ताकि money को market से out किया जा सके. जो instruments help करते हैं जिसके through expansion और contraction को place किया जाता है market में, those are known as two tools. Those are known as qualitative and quantitative tools. थ्रू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स जो मनी है मार्केट में उसे उसके कॉन्ट्रैक्शन और उसके एक्सपेंशन पर ध्यान दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे मैंने बताया कि बिजी सीज़न है, तो बिजी सीज़न में मार्केट में मनी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को लिबरल बनाया जाता है. बट इन केस अगर मार्केट में स्लैक सीज़न है और मनी की ज़रूरत नहीं है, तो मार्केट से मनी को पुल आउट किया जाता है बाय यूजिंग दीज टू टूल्स. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. नंबर 1, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. सबसे पहला है इसमें चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स. मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? देखिए मैं बताती हूँ आपको कि मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में क्या रहता है. मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज इक्वल टू लोन वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. Okay, note down, margin is equal to loan value minus market value of security. Margin is always fixed by RBI. If the margin percentage is high, then less loan is being given. देखो इसे मैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें 100% लोन नहीं देता, वो हमें कुछ परसेंटेज ऑफ लोन देता है और कुछ हमें खुद से लगाना होता है. जो हमें खुद से लगाना होता है दैट इज़ नॉट द मार्जिन रिक्वायरमेंट.
अगर 100 रुपीज़ का हम लोन लेने जाते हैं तो उसमें से अगर बैंक ने फ़िक्स किया कि 25% आपका पैसा होगा और 75% हम देंगे आपको किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, तो उस केस में अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो बोरोवर है वो खुद भी इंटरेस्ट ले अपने पैसे को बचाने के लिए, 25% को बचाने के लिए, और 75% जो बैंक का है वो ऑटोमेटिकली बच जाएगा, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का यहाँ पे रोल आता है। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को 25% की जगह 35% कर दिया जाए तो लोगों के हाथों में पैसा क्या रहेगा? कम रहेगा और मार्केट में पैसा कम आएगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स एक क्वालिटेटिव टूल का काम करता है थ्रू विच क्रेडिट कंट्रोल इज़ बिंग मेड। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मार्केट में एक्सपेंशन हो तो व्हाट कैन बी डन, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है उसे कम किया जा सकता है। दैट मीन्स लेस मार्जिन परसेंटेज, दैट मीन्स यू कैन गिव अवे मोर लोन्स एंड एक्सपेंशन विल बी क्रिएटेड और मोर क्रेडिट विल बी पुट इन टू द मार्केट। सेकेंड इज़ मोरल परसुएशन। इसमें क्या रहता है, हियर आरबीआई फोर्स कर सकता है तो कमर्शियल बैंक्स कि वो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स में भी लोन दे। सो मोरल परसुएशन में हमें आरबीआई की बैंक्स को बात माननी पड़ेगी, और अगर वो चाहता है कि ऐसे सेक्टर्स में भी लोन चाहे जहाँ पे अनप्रोडक्टिविटी है तो वहाँ पे उन्हें कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई की बात माननी पड़ती है। तो ये भी एक क्वालिटेटिव टूल का काम करता है। नेक्स्ट इज CAC, दैट इज क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1965। हियर बैंक्स को क्या करना होता है, बैंक्स को अगर 1 करोड़ के जो 1 करोड़ रुपए के फ्रेश लोन अगर किसी एक सिंगल पार्टी को देना है तो उससे पहले आरबीआई से ऑथराइजेशन लेना ज़रूरी था, और टाइम टू टाइम लेकिन ये लिमिट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1 करोड़ से ऊपर का अगर आप लोन दे रहे हो किसी सिंगल पार्टी को तो आपको आरबीआई से ऑथराइज़ कराना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स। आरबीआई लगभग 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा अगर एक पार्टी को लोन दिया जाता है तो उसको स्क्रूटनाइज कराता है सो दैट कि कल को कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तो मॉनिटरिंग अरेंजमेंट्स में क्या आता है कि 5 करोड़ से ज़्यादा अगर सिंगल पार्टी को लोन दिया जा रहा है तो उसे स्क्रूटनाइज कराना ज़रूरी है। तो ये किसके अंडर आता है? क्रेडिट मॉनिटरिंग के अंडर। नेक्स्ट इज़ डायरेक्ट एक्शन। According to Banking Regulation Act 1949, सेंट्रल बैंक किसी भी कमर्शियल बैंक को किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से कभी भी रोक सकता है। दैट मीन्स वो डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है हमारा सीलिंग ऑन लोन्स। सीलिंग ऑन लोन्स में क्या होता है कि banks can sanction maximum loan of 500 crore rupees for a single project. Here is a ceiling fixed by the RBI and the banks will have to act accordingly. Next is new loan system for delivering of bank credit. New loan system was introduced in the year 1995. इट इज़ एप्लीकेबल ऑन बोरोवर्स जो 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन डिमांड करते हैं। उसमें क्या किया जाता है, उसमें ये स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है। इसमें क्या रहता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे 100% मनी है तो 75% जो पैसा है उसमें वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, जबकि 25% जो मनी की या जो भी लोन की आपने अमाउंट पे करी है वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। So these are some of the tools which are being used by RBI to control the monetary policy, and credit is controlled through qualitative tools. On the other hand, we have some of the quantitative credit control tools as well. चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा बैंक रेट। बैंक रेट को डिस्काउंटिंग रेट भी कहा जाता है। ये वो रेट होता है जिस पर आरबीआई डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करता है द कमर्शियल बैंक्स। अगर बैंक रेट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब लोन महंगा हो जाता है। ऐसा किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए।
लेकिन अगर बैंक रेट कम हो जाता है तो लोन सस्ता हो जाता है, ऐसा किया जाता है एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SLR, दैट इज़ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पे जो टर्म है, इस टर्म के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि SLR क्या होता है। SLR एक ऐसी ऐसा रेट है या ऐसा रेशियो है जिसमें बैंक्स को लिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास कुछ परसेंटेज रखना ज़रूरी होता है। अगर SLR को देखो, SLR में CRR और SLR दो टर्म्स हैं। CRR में बैंक्स को RBI के पास पैसा रखना होता है, लेकिन SLR में बैंक्स को खुद के पास सभी अपने पास पैसा रखते हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में बैंक्स को लिक्विड एसेट अपने पास रखना, कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर SLR का RBI बोल देते कि आपको SLR ज़्यादा मेंटेन करना है, तो बैंक्स के पास जो लोन देना है, जो लोन बैंक देते हैं, उसके लिए जो मनी है वो कम बचता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर SLR की लिमिट को कम कर दिया जाता है कि बैंक्स को अपने पास, देखिए इसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि 100 में से बैंक ने बोला कि 20% आपको एज SLR मेंटेन करना है, तो बैंक के पास 80% पैसा है जिसे वो लोन दे सकता है। लेकिन अगर बैंक RBI बोलता है कि आप SLR की लिमिट को बढ़ाकर 20 से 25% कर दो, तो अब बैंक के पास 75% मनी अवेलेबल है, लिक्विडिटी अवेलेबल है, विच इज़ अवेलेबल टू द मार्केट और द बोरोवर्स, ओके। या बैंक के पास सिर्फ 75% अवेलेबल है, जबकि प्रीवियसली इट हैड 80% फंड्स। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो जाता है, यानी कि SLR ज़्यादा तो लोन कम दे पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन, इट विल लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन। बट SLR अगर कम है तो लोन के लिए पैसा ज़्यादा, इट विल लीड टू एक्सपेंशन। थर्ड इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें सभी बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में सेल या परचेज करके फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। जब RBI परचेजेस सिक्योरिटीज, द कमर्शियल बैंक्स गेट पेमेंट टू गिव मोर लोन, दैट मीन्स एक्सपेंशन। If RBI sells, banks make if RBI sells that particular security, then banks payment जो है वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मनी का फ्लो कम हो जाता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई। अगर RBI परचेज कर रहा है, परचेज करने का मतलब है कि मार्केट में पैसा उतार रहा है, ठीक है, और RBI अगर सेल कर रहा है, दैट मीन्स मनी वापस आ रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि क्रेडिट रिजर्व रेशियो, क्रेडिट रिजर्व रेशियो ऑब्लिगेटरी होता है मेंटेन करने के लिए। सभी बैंक्स को कुछ ना कुछ पर्टिकुलर रेशियो जो है वो RBI के पास मेंटेन करके रखना होता है। अगर RBI इस लिमिट को बढ़ा देता है कि आपको CRR ज़्यादा मेंटेन करना है, यानी कि मनी जो होगी कॉमर्शियल बैंक्स के पास वो कम हो जाएगी। देखो ना, आप CRR ज़्यादा कर रहे हो, यानी कि RBI के पास पैसा ज़्यादा जा रहा है, आपके पास पैसा कम बच रहा है। इफ़ यू आर अ कमर्शियल बैंक, आपने RBI के पास, RBI ने बोला कि पहले आप 5 रुपये रखते थे, अब आपको 10 रुपये रखने ज़रूरी हैं, तो आपके पास क्या हो गई, मनी पहले 95 अवेलेबल थी, अब आपके पास 90 अवेलेबल है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। और इन केस जो CRR कम हो जाता है तो मोर मनी और एक्सपेंशन होगा। रेपो एंड रिवर्स रेपो, रेपो रेट में क्या होता है, एट दिस कॉमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं RBI से, लेकिन रिवर्स रेपो वो रेट है जिस पर RBI CBs को उनके डिपॉजिट के ऊपर वो देता है, इंटरेस्ट देता है। ये देखना समझना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं फिर से बताती हूँ कि रेपो में क्या है। रेपो की फुल फॉर्म होती है रीपरचेज, और रिवर्स रेपो मतलब रिवर्स रीपरचेज। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे एज कॉमर्शियल बैंक, अगर आप क्या करते हो, अगर आप RBI से फंड्स बोरो करते हो रीपरचेज करने के लिए, आप क्या करते हो, अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ को, कमर्शियल बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ को RBI के पास रखवाते हैं और उससे फ़ंड ले लेते हैं। उस फंड को रीपरचेज करना जो है उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। और रिवर्स रेपो में क्या होता है कि अगर हम बैंक्स के जो बैंक्स हैं, अगर वो RBI के पास कुछ एक्स्ट्रा मनी डिपॉजिट करवाते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे RBI से, उसे रिवर्स रेपो बोलते हैं। क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको RBI से पैसा मिल रहा है, रिवर्स आ रहा है पैसा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो। अगर रेपो रेट ज़्यादा होता है तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन अगर रेपो रेट कम होता है तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और एक्सपेंशन टेक प्लेस करता है। लेकिन अगर मैं रिवर्स रेपो की बात करूँ तो रिवर्स रेपो में क्या होगा, रिवर्स रेपो अगर ज़्यादा है
तो बैंक्स के पास क्या होगा, क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगा, यानी और बैंक्स के पास क्रेडिट कम हो जाएगा, ठीक है। रिवर्स रेपो के केस में आपका अगर रिवर्स रेपो बढ़ जाता है तो क्रेडिट बैंक्स के पास कम होगा, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस करेगा। लेकिन अगर रिवर्स रेपो कम हो जाता है तो क्रेडिट ज़्यादा होने से एक्सपेंशन टेक प्लेस करता है। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अक्टूबर 1960 में ये मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट किए गए थे। इसमें आरबीआई ने एक क्रेडिट कोटा फिक्स किया था कि अगर बैंक्स उस कोटा के अंदर बोरो करते हैं तो उन्हें रेपो चार्ज किया जाएगा, लेकिन अगर उस कोटा से ज़्यादा वो बोरो करते हैं तो उन्हें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि मल्टीपल रेट से चार्ज किया जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर सजेशंस मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है अगर हम उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके कुछ सजेशंस दिए थे एस चक्रवर्ती कमेटी ने, जो उनके चेयरमैन थे इस कमेटी के। 1982 में ये कमेटी फॉर्म हुई थी ताकि मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्रूव किया जा सके। तो अपनी पूरी रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे इस कमेटी ने, वो क्या थे। नंबर 1, मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी प्राइस स्टेबिलिटी, कि इस मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छा काम कर सकती है और सब कुछ सही रह सकता है, बट इन केस इट्स मेन ऑब्जेक्टिव शुड इफ़ इट हैज़ अ मेन ऑब्जेक्टिव एज प्राइस स्टेबिलिटी, दैट मीन्स अगर मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस स्टेबिलिटी पर फोकस किया जाता है तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, क्रेडिट टारगेटिंग रिक्वायर्ड एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा मॉनेटरी पॉलिसी। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।